Hey everyone, today we are going to talk about something pretty cool, the circular singly linked list. Now I know what you are thinking, what makes this different from a regular linked list? Well, here is the twist. Instead of just ending, the last node connects back to the first one, creating a loop. Seems interesting, right? I'm really excited to be doing this with my amazing teammates, Gaurav and Aditya. Together, we will walk you through how it works, why it's useful, and even got some simple example to make it super clear. So stick with us. This is going to be a fun. A circular singly linked list is a data structure where the last node points back to the first node, creating a circular chain. This structure eliminates the concept of null pointer at the end of the list. Now let us see the structure and the representation of the circular singly linked list. Nodes. Each node in the list holds the data and a pointer that points the next one. Here you can see one A column, A box, which is known as data, and one gray shaded box which is known as the next, which points this data to the next one. The last node's pointer points back to the first node. Circular connection. The circular connection differentiates it from regular singly linked list, enabling the traversal in a loop without encountering a null pointer. Advantages of circular singly linked list. The circular lists are particularly useful for the application requiring continuous data flow, such as memory management and buffer implementations. Now let us see, there are three types of operations in circular singly linked list. One is insertion, deletion and traversal. Let us begin with insertion. Insertion means inserting a new node involves connecting it to the list's existing structure, updating pointers accordingly. There are three types of uh, operations in insertion: insert at the beginning, insert at the end, and insert at any specific position you want. Now let us see deletion. Deleting a node requires updating pointers to bypass the node being removed, preserving the circular connection. There are three types in this also: delete at the beginning, delete at the end, and delete at the specific position. Traversing. Traversing a circular list involves in starting at a specific node and visiting each node in a sequential manner until reaching the starting node. There are two types: forward traversal and a backward traversal. आदित्य साल्टे, जैसे कि आपने देखा मेरे दोस्त धनुष ने आपको बताया कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है, उसमें डेटा इंपोर्ट कैसे करते। अभी जानेंगे कि सर्कुलर सिंगली लिंक्स को हम यूज़ कैसे करते। चलो तो शुरू करते हैं। सिस्टम में आ चुके। अब हम देखते हैं पहले कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट होता कैसा है और ये कैसा दिखता है। जब हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो ये अपने सिस्टम के बैकग्राउंड में या बैकएंड में हम कह सकते हैं कैसे ये वर्क करके एक अपना इमेज कैसा क्रिएट करता है। तो जैसे ये देखिए, ये अपना है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला जब हम डेटा क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला हमारा बनता है हेड नोड। उसके बाद बनता हेड नोड। उसके बाद जब हम सेकेंड डेटा डालते हैं तो वो समझिए हमारा सेकेंड डेटा है, तो ये इसका रेफरेंस किसके पास होगा? हेड नोड के पास। फिर थर्ड जो डेटा डालेंगे उसका रेफरेंस किसके पास होगा? हमारा सेकेंड नोड के पास। और जब हम कोई भी समझो डेटा डाले, ये समझो हमारा एंडिंग डेटा डाले, तो इसका रेफरेंस इसके पास। और जो एंडिंग डेटा के पास किसका रेफरेंस रहेगा? हमारे हेड नोड के पास। हेड नोड का पास। तो देखिए एक कैसा सर्कुलर बन रहा है। इसको हेड नोड को पता है कि ये हमारा अगला नोड ये है, इसको पता है अगला नोड ये है, इसको पता है अगला नोड ये है, और हमारा टेल बोलेगा कि अगला नोड हमारा फिर से हेड की तरफ है। तो ये ऐसा हमारा सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट वर्क करता है। तो अभी हम जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब सिंगली लिंक लिस्ट भी तो यही करता है, तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की क्या जरूरत है? सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखिए, जब हम सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो जब हमने पहला नोड बनाया वो हमारा हेड नोड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हम सेकेंड नोड क्रिएट करेंगे तो सेकेंड नोड का रेफरेंस हेड नोड रखेगा कि मेरे पास ये सेकेंड नोड है। फिर सेकेंड नोड बोलेगा ठीक है मेरे पास ये थर्ड नोड ये है, इसका रेफरेंस ये है। और ये बोलेगा इसके नेक्स्ट में कि मेरे पास लास्ट नोड ऐसा टेल का है, और जो टेल बोलेगा मेरे आगे कुछ नहीं है। तो ये एंडिंग नोड है।
लेकिन सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में क्या हो रहा है, इसके जो टेल का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है नोड के, उसमें कोई भी नल वैल्यू आती ही नहीं है। तो एक पहला प्रॉपर्टी हमको ये पता चला कि सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में कोई भी नल वैल्यू कोई भी नोड स्टोर नहीं करता। ये एक सर्कुलर फ्लो बन रहा है। देखो इसमें तो ये नल होल्ड कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है डायरेक्ट ये हेड नोड का पोजीशन ले रहा है। तो एक सर्कुलर फ्लो बन चुका है। अब हम जानते हैं कि क्यों, जब सिंगल इंक्लिस्ट है हमारे पास तो हम सर्कुलर सिंगल इंक्लिस्ट क्यों यूज करें। देखो, जब हम इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं ना, तो सबसे पहला हमको जो भी अपना लॉजिक या फिर कोड को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो सबसे पहला हमको देखना होता है कि कौन सा कोड ज्यादा एफिशिएंट है, कम टाइम पे वो हमको आउटपुट दे रहा है, तो हम वो कोड यूज करते हैं। जब हमें एक सर्कुलर सिंगल इंक्लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर दिया है तो ऐसे फ्री में तो दिया नहीं होगा, तो कुछ उसका मतलब होगा कि हमें कब यूज करना है। देखो, तो इसके ऑपरेशंस क्या क्या है। सबसे पहला इसमें हम लोग इंसर्शन मतलब वैल्यू डाल सकते हैं, नोड एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, नोड डिलीट कर सकते हैं। हम लोग चेक कर सकते हैं अपना एम्प्टी है कि नहीं, काउंट कितने नोड वेरिएबल है वो देख सकते हैं। ट्रावर्सल मतलब हर एक नोड को रिप्रेजेंट करके हम देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारे नोड में है, और सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंसर्शन में हमारा टोटल 3 टाइप होता है, या फिर हेड में करो, या फिर मिडल में करो, या फिर टेल में करो। और डिलीशन में भी यही सेम, हेड में करो, मिडल में करो, या टेल में करो। तो सबसे पहला क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला समझो हम लोग अभी करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग देखते हैं यूजिंग टेल नोड। सबसे पहला हम लोग देते हैं इंसर्शन हेड का। ठीक है, तो इंसर्शन हेड क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये हमारा न्यू नोड हम लोग क्रिएट किया। ठीक है, इसका नाम है न्यू नोड। अब इसको हमको हेड में ऐड करना है। हम अभी हेड नोड के रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर न्यू नोड हमको ऐड करना है तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड को रेफरेंस देना होगा। तो अभी मेरे न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है, हेड है, मतलब ये अभी मेरे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना होगा अभी, अभी हमको करना पड़ेगा कि जो ये हमारा हेड है अभी इसको रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रावर्सल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोग बोलेंगे इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1। ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टाइम लग रहा है ना, इसमें कोई ट्रावर्सल नहीं है। हमको पता है डायरेक्ट न्यू नोड के नेक्स्ट में हमको हेड का रेफरेंस देना है, उसको हेड असाइन कर देना है, कोई ट्रावर्सल नहीं है। तो ये बहुत फास्ट करेगा। अगर हमको सिंगली इंग्लिश में हेड ऐड करना है तो ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होगा। लेकिन जब हमको मिडल करना है, ठीक है, तो अभी जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी ये है मेरा, ये समझो ये मेरा हेड, इसको यहाँ पे, हाँ, अभी क्या हो रहा है कि, ठीक है, तो अभी कैसा, अभी समझो मेरे को ये जो न्यू नोड है मेरा, अभी ये दोनों के बीच में ऐड करना है। ये मेरा जो न्यू नोड है ये इधर ऐड करना है। ठीक है, तो इधर ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को ट्रावर्सल करना पड़ेगा, जो कि मैं हेड से शुरू करूंगा। तो सबसे पहला मैं वैल्यू में मैच करूंगा, इस पहले मैं मैच करूंगा वैल्यू क्या है, इससे मेरा वैल्यू मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे इसके बाद ऐड करना है ना। तो सबसे पहला मैं एक आफ्टर भी वैल्यू दूंगा कि किसके बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा 2 के बाद करना है, 2 के बाद, और इसके अंदर मेरा वैल्यू है 2, और इसके अंदर मेरा वैल्यू है 4, और इसके अंदर मेरा वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये 2 के बाद करना है। तो सबसे पहले मैं हेड नोड के वैल्यू को देखूंगा, क्या ये 2 है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, तो ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस पे आ जाएगा। तो अभी मैं बोलूंगा कि ये जो मेरे इस पे आ गया, क्या इसकी वैल्यू 2 है, हाँ है, तो इसका मतलब मेरे को क्या पता चला, मेरा जो न्यू नोड है अभी मेरे को इसके बाद लगाना है। तो ये मैं कैसा होगा, अभी मैं इसके नेक्स्ट में, अभी किसका रेफरेंस है, इसका, तो मैं इसके नेक्स्ट में अभी दे दूंगा इसका रेफरेंस न्यू नोड का। और न्यू नोड के रेफरेंस में मैं क्या दे दूंगा, इसके नेक्स्ट में मैं दे दूंगा इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो ये इसके रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो गया। अब इस यहाँ तक पहुंचने के लिए भी मेरे को क्या लग रहा है, ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल लग रहा है, तो इसका मतलब सेम है कि जितना लंबा नोड रहेगा उतना लंबा ट्रावर्सल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टाइम लेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n। इट मीन्स कि इसका मतलब कि मिडल में करने के लिए हमें n लग रहा है। अभी टेल, तो टेल में हमें कैसा पता चला, देखो अभी ये हमारा टेल है। ठीक है,
अभी हमारा टेल ये है, ठीक है? अभी हमारा टेल ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है ना, हमें टेल में ऐड करना है, मतलब इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? तो अभी हमारा हेड यहाँ से शुरू किए, अब हमको एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमें अभी यहाँ पर है, हमको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है? अभी हमको यहाँ पे विजिट करना है, तो यहाँ पे विजिट कैसे करेंगे, ट्रावर्सल से। हम लोग कंडीशन चलाएंगे, क्या हमारा नेक्स्ट नन है? अगर नेक्स्ट नन रहेगा तो वहाँ पे रुक जाएगा, हम हमारा लूप बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी ये चला है, सबसे पहले ये कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले ये चल के यहाँ पे जाएगा, नन है, नन ये ना, तो यहाँ पे आ गया, क्या ये नन है? नहीं है, तो ये यहाँ पे आ गया। क्या इसका नेक्स्ट नन है? नहीं, क्योंकि इसको रिफर कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। क्या ये नन है? हाँ है, ये हमारा नन है। तो क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में हम न्यू नोड का डाल देंगे, ठीक है? न्यू नोड का डालने के बाद हम लोग बोलेंगे ठीक है, अब ये टेल नहीं है, हम बोलेंगे कि हमारा ये टेल नहीं है, अभी हमारा टेल ये रिफर कर दो, ठीक है? तो हमारा अभी ये रिफर करने लगेगा टेल। तो इसमें ट्रावर्सल लग रहा है ना, क्योंकि जितना लंबा नोड, अगर समझो यहाँ पे 500 नोड्स होते, तो हमें 1 से लेके 500 तक पहुंचना पड़ता ना, टेल नोड तक। तो जितना लंबा टाइम लग रहा है, जितना लंबा, तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी 1 होगी। तो इसमें भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, इसमें भी अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लग रहा है। अभी डिलीशन, अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें डिलीशन करना है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम वो समझो डिलीशन यहाँ पे करना है, तो अभी हमें समझो हमें वैल्यू करनी है डिलीट। तो डिलीट में हमें समझो हमें हेड नोड को डिलीट करना है, तो हेड नोड हम कैसे डिलीट करेंगे? अभी हमारा हेड ये है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमारा जो हेड है ना, अभी हमको इधर रिफर करना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली लिखना होगा हेड इक्वल टू, अभी हेड ये है, तो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है? तो हेड का नेक्स्ट क्या था, ये था, तो ऑटोमेटिकली हमारा हेड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा ये तो कैंसिल हो गया अभी। अभी हमारा हेड ये, तो कोई ट्रावर्सल लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये तो हमारा फास्ट ही होगा, तो हमारा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा 1, ठीक है? 1। मिडल में क्या होगा, मिडल वैल्यू पहले हम लोग आफ्टर देंगे, क्या उससे मैच करते करते ट्रावर्सल करेंगे, जितना लंबा नोड होगा, जितना ज्यादा नोड, उतना ज्यादा ट्रावर्सल में टाइम। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा n। अगर हमको टेल डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टेल डिलीट करना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए भी, यहाँ तक पहुंचने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए भी यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। जब यहाँ पे हमारा टेल नोड है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रुक के इधर हम लोग को नल स्टोर करना होगा, ठीक है? यहाँ पे ये डिलीट करना है ना, तो यहाँ पे रुक के इसको हमको टेल असाइन करना पड़ेगा ना, तो हमें इसके लिए भी लूप लगाना पड़ेगा। जब हमको लूप लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, n, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n, n। और ट्रावर्सल में हमको हर एक नोड को देखना है, वैल्यू दिखानी है उसकी, तो उसमें तो ट्रावर्सल लगेगा ही। और काउंट में भी लगेगा, जितना ज्यादा नोड, हम पहले नोड काउंट करेंगे लूप से, जितना नोड रहेगा उतना काउंट। तो इसमें भी हमारा दोनों मिला के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1। तो ये हमारा ये सिंगल इंग्लिश ऐसा वर्क करता है। अब यही, अब अगर हम लोग सर्कुलर सिंगल इंग्लिश देखें, इसमें भी ऑपरेशन सेम है, इंसर्शन डिलीशन ये सब सेम है। बस इसमें फर्क क्या है कि हमारा जो टेल नोड है, उसमें से हमारा इसको रेफरेंस करा है हेड को। सिर्फ इतनी सी स्मैक चेंजेस है सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में। तो इसके अंदर हम क्या करें, हम लोग चेक करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेड नोड से शुरू करके, ठीक है? मतलब हम लोग कुछ भी करेंगे ना, हम हेड नोड से करेंगे करने वाले। तो ये हिसाब से सबसे पहला हमारा क्या होगा, हम देखेंगे इंसर्शन। इंसर्शन में 3 टाइप, जैसे मैंने कहा था, हेड मिडल टेल, इसमें भी हेड मिडल टेल। तो सबसे पहला अगर हम लोग को इंसर्शन करना है, फॉर एग्जांपल समझो हमें ये वैल्यू हेड ये करना है इसके अंदर, तो काम हो गया? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी भी टेल नोड हमारा इसको रिफर कर रहा है। तो ये सर्कुलर सिंगल इंक्लिस्ट तो ऐसा नहीं है, ये हमारे हेड नोड को रिफर करना चाहिए, ठीक है? हेड नोड को रिफर करना चाहिए, तब जाके कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर हम लोग को 2 स्टेप करने हैं। कैसे करेंगे 2 स्टेप? देखो, हेड नोड है, हम लोग ने न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड रख दिया, ठीक है, रख दिया। तो अभी ये हमारा जो है रिफर कर रहा है हेड नोड को। और फिर हम लोग लूप लगाएंगे, लूप लगाएंगे, अभी तो इधर ही है ना, लूप लगाएंगे तब जाके हम लोग टेल नोड पे पहुंचेंगे। और इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे, न्यू नोड का रेफरेंस।
ठीक है, न्यू नोड का रेफरेंस रखेंगे। तो इसके अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड नोड को इसको असाइन करेंगे। तो इसमें भी लूप लग रहा है ना, तो इसमें भी जितना ज्यादा नोड उतना ज्यादा टाइम लूप में, उतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें एन लगेगी। ठीक है, एन लगेगी। अभी मिडल वैल्यू जब हमें इतना तो लॉजिक की बात है, जब हमें हेड में लग रहा है तो मिडल में तो हमें ट्रावर्सल करना ही पड़ेगा। पहले हेड में जाओ, उसका आफ्टर वैल्यू ढूंढो, मैच करेगा तो आफ्टर के बाद हमें मिडल ऐड करना पड़ेगा। फिर ऐड करते करते हमें ट्रावर्सल तो लगने वाला है। इसमें टेल नोड के नेक्स्ट में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो हेड को रिफरेंस कर ही रहा है, सिर्फ मिडल में ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम सॉरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी। अब हमें टेल, फॉर एग्जांपल अगर अभी हमको टेल में ऐड करना है तो टेल में हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेल है। अभी हमको अगर टेल में ऐड करना है तो समझो ये हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड जिसको मैं अभी, ये मेरा हेड अभी इसको रिफर कर रहा है, इसको मेरे को टेल में ऐड करना है। टेल में मीन्स क्या हो रहा है कि टेल में मीन्स हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा समझो अभी टेल है, ठीक है, ये मेरा टेल है। अभी ये किसको रिफर कर रहा है, इसको मत देखो, ये डार्क लाइन को देखो, हेड को कर रहा है। अभी मैंने न्यू नोड डाला, अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। मैं पहले अपने टेल नोड तक को पहुंचना है, तो सबसे पहले मैं ट्रावर्स करके इधर इधर समझो इधर पहुंचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। जब तो ये अभी इसको रिफर कर रहा है, ठीक है, ये अभी इसको रिफर कर रहा है। लेकिन हमारा अभी उसके बाद हम बोलेंगे कि जो हमारा टेल होगा, जो हमारा टेल होगा अभी, ये नहीं जो समझो ये हमारा टेल हो गया। अब समझाओ, समझो अभी ये जो हमारा टेल है, अभी ये टेल हमको रेफरेंस दे रहा है क्या किसी का, नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है क्योंकि ये तो अभी हम इसको ही रिफर कर रहे हैं। तो अभी क्या बोलेंगे हम कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हमें इसका रेफरेंस दे दो, तब जाके कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर भी ट्रावर्सल लग ही रहा है। जब ट्रावर्सल इसके अंदर लग रहा है तो इतना पता चल गया, जितना ज्यादा लंबा नोड उतना ज्यादा लंबा टाइम ट्रावर्सल में। तो इसमें भी हमका क्या लग रहा है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है इसमें एन। डिलीशन, डिलीशन में भी सेम लॉजिक है। डिलीशन में सेम लॉजिक कैसा देखो, डिलीशन में क्या हो रहा था, अगर हम लोग को ये नोट डिलीट करना है, ठीक है, ये नोट डिलीट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा, ये जो हेड है हमारा, ये जो हेड है इधर लाना पड़ेगा। तो ये कैसा आएगा, ये आएगा हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो ये हमारा इसको रिफर कर रहा है, तो हेड यहाँ से शुरू है, पर अभी अपना टेल नोड क्या कर रहा है, अभी भी टेल नोड इसको ही रिफर कर रहा है ना। देखो टेल नोड इसको रिफर कर रहा है, किसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। और यहाँ इधर चेंज करने के लिए हम लोग को ट्रावर्सल करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा लंबा नोड उतना ज्यादा ट्रावर्सल। तो इसमें भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। इसमें भी इसकी एन होगी, सॉरी एन। फिर जब इसमें भी सिंपल सी बात है, इसमें भी एन लगेगा मिडल वैल्यू पहुंचने के लिए, डिलीट करने के लिए। और अगर टेल डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें टेल, अगर हमें टेल डिलीट करना है यहाँ पे, टेल अगर हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए हमको यहाँ पे विजिट करना होगा, यहाँ पे विजिट करना होगा। यहाँ पे विजिट करने के लिए हमारा इसका नेक्स्ट इसको रिफर करना चाहिए, ठीक है, इसको। तो इसमें भी ट्रावर्सल लग ही रहा है, तो इसमें जब ट्रावर्सल लगेगा तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन। समझो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी। तो ट्रावर्सल अकाउंट में तो एन हो गई। तो देखो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, फिर हम लोग सोचेंगे कि इससे ज्यादा फास्ट तो हमारा सिंगली लिंक्ड ही था, कम से कम उसको हेड नोड को ऐड करने के लिए नहीं लग रहा है, तो इसमें टाइम कम लगेगा। पर ऐसा नहीं है, इसमें एक हमको सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग को अगर फास्ट करना है प्रोसेस, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और कंडीशन है। हम हेड नोड से शुरू नहीं करेंगे, हम हेड नोड से शुरू नहीं करेंगे, हम टेल नोड से शुरू करेंगे। देखो कैसे, तो टेल नोड से शुरू करने के लिए इसमें भी 3 ऑपरेशन है, इंसर्शन सेम है, बस हम टेल नोड से रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। इंसर्शन हेड,
मतलब इंसर्ट करना है हमें हेड नोड में, लेकिन हम टेल से शुरू करें। समझो ये हमारा न्यू नोड है, इसको ऐड करना है, किसमें करना है, हेड में। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी हम लोग बोलेंगे कि न्यू नोड इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट। तो टेल डॉट नेक्स्ट अभी किसको कर रहा है, टेल डॉट नेक्स्ट अभी इसको रिफर कर रहा है, इसके पास इसकी डेटा है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू नोड इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट इसमें इसमें ठीक है, टेल डॉट नेक्स्ट मतलब ये। तो अभी इसके अंदर किसकी डेटा आ जाएगी, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हेड की। ठीक है, हेड की डेटा आ गई। हेड की डेटा आने के बाद अब ये जो हमारा टेल है, रिफर तो इसको ही कर रहा है ना, इसको। लेकिन हमको रिफर किसको कराना है, अभी रिफर कराना है इसको। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड बोलेंगे, तब जाके इसको कनेक्ट करेगा। ट्रावर्सल लगा, और भी पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग टेल में से ही सब कुछ कर दे रहे हैं। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ हेड का 1। मिडल वैल्यू मिडल वैल्यू मिडल वैल्यू फॉर एग्जांपल समझो, मिडल वैल्यू में समझो हमको इसके बाद करना है। ठीक है, ये जो हमारा नोड है इसके बाद इधर ऐड करना है। इधर ऐड करने के लिए क्या, इसमें तो चेंजेस होगा नहीं क्योंकि हेड तो सेम है, बस मिडल में ट्रावर्सल करना ही होगा। तो जब ट्रावर्सल करना होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन। हाँ, अब देखो, टेल टेल क्या हो रहा है इसमें। समझो अभी मेरा ये न्यू नोड है, ये मेरा न्यू नोड है। ठीक है, अभी मेरे न्यू नोड को इसमें ऐड करना है। मतलब अभी मेरा जो टेल है ना, ये जो मेरा टेल है, अभी इसको रिफर करना चाहिए। अभी अभी इसको रिफर करना चाहिए टेल। तो कैसा होगा, अभी हम हमारा जो रेफरेंस है टेल से स्टार्ट हो रहा है अभी, मतलब हम लोग टेल नोड पे, ऐसा बोल करो टेल नोड पे। तो क्या करेंगे हम, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड डालेंगे। नहीं नहीं, देखो कैसा होगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, मतलब पहले हम इसको डेटा दे देंगे हेड नोड का। ठीक है, हेड नोड का दे दिए जैसे हम इंसर्शन ऑफ हेड में किए थे। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, फिर ये इसको रिफर करने लगेगा। ठीक है, ये इसको रिफर करने लगा। उसके बाद क्या, बस एक चीज इसमें करना है, ये जो टेल उठा के हमें हमें ये बस, ये टेल उठा के, ये टेल, अरे आजा, हाँ ये टेल उठा के हमें बस इधर इसको बता देना है। इसमें भी कोई हमें नहीं लग रहा, तो इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसमें 1। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है 1। ऐसे ही सेम डिलीशन है, हेड को जब डिलीट करना है हमें, तो इसमें सिंपल सी देखो, तो इसमें सिंपल क्या काम करना है हमें, इसमें सिंपल ये है कि अगर हमें ये डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉरी, हेड डिलीट करना है तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, ये जो टेल है ये रिफर करना चाहिए डायरेक्ट इसको। ठीक है, डायरेक्ट इसको रिफर करना चाहिए। सॉरी, हाँ, ये जो है टेल लो, अब डायरेक्ट रिफर करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी तो हमारा टेल वो है तो हेड इसको रिफर कर तो हेड हुआ, लेकिन अभी इसको हमें रिफर कराना है तो इसको कैसा होगा, डायरेक्टली हम बोलेंगे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, मतलब जो टेल का नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, टेल का नेक्स्ट मतलब ये, इसकी नेक्स्ट की वैल्यू मतलब ये। तो ये ऑटोमेटिकली अभी किसको करेगा, ये इसको करेगा। तो डिलीट, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हुआ, हेड ऑफ 1 हुआ। मिडल वैल्यू मिडल वैल्यू करने के लिए डिलीट और ट्रावर्सल करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, एन हुआ। टेल, हाँ, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा टेल डिलीट करना है। एग्जाम्पल समझो, अभी हमारा टेल क्या है, ये नोड है। ठीक है, हमारा टेल नोड अभी ये है, इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे ये नोड पे पहुंचना पड़ेगा। ये नोड पे पहुंचने के बाद हमें ये यहाँ पे इसको रिफर करना चाहिए। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रावर्सल। ठीक है, नेक्स्ट में पहुंचेंगे, पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर इससे यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर इससे यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और फिर इसके नेक्स्ट में हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो इसमें ट्रावर्जल लग रहा है, तो इसमें हमको लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन, जितना ज्यादा नोड उतना ज्यादा टाइम।
और ट्रावर्सल और काउंट में तो लगेगा ही। तो देखो इसमें हमको क्या पता चला कि जो हमारा इसमें हमको पता चला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा सिंगली लिंक लिस्ट था ना हेड में से, उसमें हमारा हेड में फास्ट हो रहा था और डिलीट हेड में से हो रहा था, बाकी सब एन एन टाइम ले रहे थे। इसका मतलब हेड में जब हम हेड में ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे डिलीट हो चाहे ऐड हो, दोनों हेड फास्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें सब देखो सब स्लो हो रहे हैं। जब हम सर्कुलर सिंगल इंक्रीज हेड को रिफर करके कर रहे हैं, देखो सब एम एन लग रहे। तो ये हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, सर्कुलर सिंगल इंक्रीज हम करेंगे विद टेल नोड से। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हेड भी फास्ट हो रहा है, टेल भी फास्ट हो रहा है, और इसमें डिलीट हेड हो रहा है टेल, मतलब इसमें तीन ऑपरेशन फास्ट हो रहे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगी हमें। तो हम यूजिंग टेल रिफर कर। तो ये हमारा लॉजिक था कि हमें सर्कुलर सिंगल इंक्रीज टेल नोड को रिफर करते हुए करना चाहिए। इसमें टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट जो हम हेड नोड से करते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट जो हम हेड नोड से रिफर कर करते हैं। तो अगर आपको इसका कोडिंग पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में बताओ। तब तक ले स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।